Hello students, welcome to the fifth lecture of SP subject for 12th standard commerce. From chapter number 2, sources of corporate finance, our today's topic is types of preference shares. But before moving to today's topic, let us see what we have covered in our previous lecture. So, in our last lecture, basically we have covered first the meaning of preference shares. From that, we have understood that the preference shares are those shares which carry priority for payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up in front of equity shareholders. And after that, from meaning, we have covered features of preference shares. So, in last topic, we have understood that the preference shares are those shares who have the priority for the payment of dividend and repayment of capital. Now students, our today's topic is types of preference shares. So, this question is asked for 10 marks in the board exam. Okay. In the February 2020 paper of HSC subject SP, this year, features of equity shares was asked. Okay. So, this features of equity shares we have covered in our last lecture. Okay. Now, if this question is asked for 10 marks, how we have to write this answer, we will understand first that. So basically students, यहाँ पे 10 marks is divided into two parts, that is 2 marks and 8 marks. Okay, so for 2 marks, we are supposed to write the meaning of preference shares. And after that, for 8 marks, we should write the content, that is types of preference shares. It means that if this question is asked in the exam, we are not supposed to start directly with the types of preference shares. Okay, हमको पहले preference shares का meaning 4 to 5 lines में explain करना है और उसके बाद ही हम लोग types of preference shares को explain करेंगे. Okay, now let us start our today's topic, that is types of preference shares. Now students, as you see this chart has been classified into 4 parts. Okay, in each part there are 2 types of preference shares. So in and all there are total 8 types of preference shares. So let us see one by one. The very first type is cumulative preference shares and non-cumulative preference shares. इसको हम और डिटेल में कर रहे हैं. Firstly, we will understand the types. Okay. The second heading is participating preference shares and non-participating preference shares. The next heading is convertible preference shares and non-convertible preference shares. And the last is redeemable preference shares and irredeemable preference shares. अगर आपको ये आंसर प्रेजेंटेबल दिखाना है तो ये आंसर लिखते समय आप फर्स्टली मीनिंग तो लिखेंगे ही 4 to 5 लाइंस. उसके बाद आप ये अगर चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका आंसर काफी प्रेजेंटेबल लगेगा. But it is not compulsory that you will always draw the chart. If you will directly start before drawing the chart, you can start your answer types also. Okay. So our first type of preference shares is cumulative preference shares. Now students, cumulative का मतलब होता है जमा होना. Preference shares मतलब एक ऐसे प्रकार के preference shares हैं जहां पे something is being added over. Okay,
अब यहाँ पे क्या जमा हो रहा है हमको वो समझना है. So students, cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating. Accumulating means jama hona until it is fully paid. It means dividend. Until dividend is fully paid. The meaning of this term says that कि ये जो shares हैं ये वो type of shares हैं जहां पे अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर ईयर में बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट की वजह से डिविडेंड नहीं पे कर पा रही है तो उस पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड अक्यूमुलेट होगा, मींस जमा होगा. इट मींस दैट स्टूडेंट्स, इफ सपोज द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन अ पर्टिकुलर ईयर, सो उस ईयर का जो डिविडेंड होगा वो डिविडेंड क्या होता जाएगा, अक्यूमुलेट होता जाएगा. ओके और उसमें द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. इट मीन्स टू से दैट कि जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, इक्विटी को देने से पहले जो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड जमा हो गया है उनको पे करेगी. इसको हम और समझते हैं एक एग्जांपल के साथ. सपोज मैंने एक कंपनी में 100 फेस वैल्यू के 100 प्रेफरेंस शेयर्स परचेस किए. इट मींस दैट मैंने कंपनी में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल ऑफ ₹10,000. अब मैंने जो प्रेफरेंस शेयर्स परचेस किए हैं उस पे मुझे 10% एनुअल डिविडेंड मिलेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड 10% मिलेगा. ओके सो उस हिसाब से मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹1,000. ओके सो सपोज कंपनी ने 2000 इन द ईयर 2017 में 1,000 का प्रॉफिट मुझे दिया, सॉरी डिविडेंड मुझे दिया. इन द ईयर 2018 कंपनी ने डिविडेंड मुझे नहीं पे कर पाई बिकॉज ऑफ लॉस. ओके इन द ईयर 2019 ऑल्सो कंपनी का लॉस ही हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ. फिर कंपनी ने मुझे डिविडेंड नहीं पे कर पाई एंड इन द ईयर 2020 में कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ. तो अब मेरा जो डिविडेंड है जो अक्यूमुलेट हुआ 2 years का, that will be amount of 2,000 will be paid to me along with the dividend of the year 2020. It means that अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो वो मेरा डिविडेंड लैप्स नहीं होगा, वो डिविडेंड मेरा जमा होगा जब तक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी कि कंपनी को मुझे वो डिविडेंड एरियर्स जो मेरे हैं, डिविडेंड के जो एरियर्स हैं वो मुझे भर के देने हैं. ओके सो दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आई होप आपको समझ में आ गया कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है. जहां पे आपको अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड न मिला तो आपके वो अरियर्स जो हैं, पेंडिंग अमाउंट, जो एरियर का मतलब होता है पेंडिंग अमाउंट, अगर वो नहीं मिला है तो वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है. The second type of dividend is non-cumulative preference shares. Now, this type of preference share is totally opposite of cumulative preference shares. It means what? It means that the dividend on these shares does not get accumulated. Means यहाँ पे जो dividend है preference shareholders का वो accumulate नहीं हो रहा है. Accumulate means जमा नहीं हो रहा है. It means that the dividend on the shares can be paid only out of profits of that year. मतलब यहाँ पे उसी साल का आपको डिविडेंड मिलेगा जिस साल में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है. ओके द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स, मींस लॉस्ट, इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर. अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. ओके दैट ईयर्स डिविडेंड इज लॉस्ट फॉरएवर.
You will not get the dividend of that year in which company has occurred a loss. Like क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या स्टूडेंट्स के अगर कंपनी को किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, सो नो वरी, वो डिविडेंड मिलना ही है. ओके, बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, ये वो डिविडेंड है जिसमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी will pay the dividend. But if the company is not earning the profit, the company cannot pay the dividend to its shareholders. Okay. Now let's see the third type of preference shares, that is participating preference shares. Now students, यहाँ पे सबसे पहले हमको participating की meaning समझनी है. बहुत सारे students इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि दे हैव अ पार्टिसिपेशन राइट टू वोट. नो, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये नहीं है दैट दे विल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. नो, हियर पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है. ओके, अभी सरप्लस प्रॉफिट का मतलब है कि जैसे कंपनी को डिविडेंड आया उसमें से कंपनी ने क्या किया, जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें से कंपनी ने क्या किया, उस प्रॉफिट में से कंपनी ने पहले क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, उसके बाद कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया, उसके बाद कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया. अब जो प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस प्रॉफिट. इट मींस इट इज दैट प्रॉफिट व्हिच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं दे हैव अ सर्टेन परसेंटेज टू पार्टिसिपेट in the surplus profit. It means that here they will get the regular dividend, their dividend जो उनको मिलता है that dividend, along with that they will get extra dividend. Correct? So here the participating preference shares means that shares which participate in the surplus profit. It means students अगर वो profit नहीं बचा तो these types of preference shares will not participate. Correct? अगर वो surplus profit बचा तो ही ये preference shareholders को extra dividend मिलेगा. Okay? They will not have the right to participate in the management of company. No, they will participate in the extra profit of the company. So next point is non-participating preference shares. Non means no, participating means participate. ये वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स जहां पे क्लियरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक प्रोविजन है कि इन शेयर होल्डर्स को जो अपना फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वही इनको डिविडेंड मिलेगा. These types of preference shareholders will not get the extra dividend from the surplus profit. Okay. Now students, articles of association tells the internal rules and regulation of the company. So here अगर articles of association में ऐसा कोई clause, ऐसा कोई provision नहीं है तो इन preference shareholders को उनका जो normal डिविडेंड है, जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है, सिर्फ वो ही डिविडेंड मिलेगा. यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप ये आंसर देखेंगे ना, सो फ्रॉम द हेडिंग ओनली यू विल कम टू नो द मीनिंग ऑल्सो. लाइक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेट मतलब क्या, जमा होना. तो वहां पे क्या जमा हो रहा था, डिविडेंड जमा हो रहा है इन केस ऑफ लॉस. करेक्ट. द नेक्स्ट वी हैव सीन अदर टाइप हमने देखा पार्टिसिपेटिंग विच पार्टिसिपेट. करेक्ट. किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे.
ओके अगर आप ऐसे कोरिलेट करके लर्न करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर इजी भी होगा आपको लर्न करने के लिए, करेक्ट। यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड, ओके। अब ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ओके। Now students, many times when I check the board papers, so students ये लिखते हैं कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जो डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इट इज टोटली रॉन्ग आंसर, ओके। तो यहाँ पे आपको आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर रखना है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अब जब ऐसे प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स अगर इश्यू हो रहे हैं, तो इनका जो कन्वर्शन का पीरियड है वो जब ये शेयर्स इश्यू होते हैं तभी ही वो पीरियड फिक्स हो जाता है, ओके। सो let us see the meaning. The holders of these shares have a right to convert their preference shares into equity shares. Means up to a particular year, these shares will be treated as preference shares, whereby they have the priority of getting the dividend compared to equity. And after expiry of that period, these preference shares will be converted into equity shares. Now these shares will be converted into equity shares, so they will get all the rights of equity shares like bonus issue, right issue, and even they will bear the risk, correct। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, these shares किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, they are converted into equity shares, and the conversion period is fixed at the time of issue of such types of preference shares, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ऐसे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को दो एडवांटेजेस हैं। कैसे? फर्स्ट, दे कैरी द एडवांटेज ऑफ गेटिंग द प्रेफरेंस, correct, and after that they will get the advantage of converting into equity shares, okay। The next type is non-convertible preference shares. Non means with no, convertible means convert होना, preference shares means students ये वो preference shares हैं जो equity में convert नहीं हो रहे हैं। It means that students यहाँ पे अगर कंपनी ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, तो कंपनी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कंपनी के पास, दैट इज बाय बैक। इट मींस यहाँ पे ये प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे, ओके। Since these shares are not convertible into equity shares, so these shares will be redeemed after the expiry of that period, okay। Our next point is redeemable preference shares. Now students, redeemable means repayable, okay। So redeemable preference shares means वो preference shares which are repaid after a certain fixed period of time। यहाँ पे हम redeemable को बाय बैक भी बुलाया जाता है, जैसे मैंने पहले वाली पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे ये वो शेयर्स हैं स्टूडेंट्स जो कंपनी आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम खुद ही ये शेयर्स अपने परचेस करती है, ओके। द नेक्स्ट लाइन इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? इट मींस दैट द लायबिलिटी ऑफ शेयर्स इज लिमिटेड ओवर हियर, ओके। आपने लास्ट ईयर जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स में ये पॉइंट पढ़ा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी, whereby the liability of the shareholders is limited up to the face value of the shares. So here the company which is limited by shares, and if it is authorized by articles of association, अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कंपनी को ये शेयर्स रिडीम करने हैं, रीपे करने हैं, तो उसको वो पावर कौन देता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सेकेंडरी बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को सेट करता है। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथोराइजेशन है, तो कंपनी कैन इशू
redeemable preference shares. But students, ये रिडीम करने से पहले ये शेयर्स फुली पैड अप होने चाहिए. What do you mean by fully paid up? अगर कंपनी 100 रुपीज का पर शेयर मार्केट में इशू कर रही है तो वो 100 रुपीज मस्ट बी पेड अप, तो ही कंपनी इन शेयर्स को रिडीम कर पाएगी. इट मीन्स दैट अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो ये शेयर्स रिडीम नहीं हो पाते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये जो कंपनी रीपे कर रही है ये कंपनी कैसे रिडीम करती है. सो दीज शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ divisible profit. Now what do you mean by divisible profit? Divisible profit means that amount of profit which is available for the company for the distribution purpose. Okay, the profit which is available to the company for distribution purpose. तो या तो कंपनी divisible profit में से कंपनी ये शेयर्स को रिडीम करेगी, या तो दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस. फ्रेश इशू का मतलब यहाँ पे अगेन कंपनी मार्केट में फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करके जो कैपिटल कलेक्ट करेगी उस कैपिटल में से कंपनी इन शेयर्स को क्या करेगी, रिडीम करेगी. ओके, तो यहाँ पे हमको बेसिकली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ये समझना है कि जब कंपनी ऐसे टाइप ऑफ शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को वो ऑथोराइजेशन कौन देता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एंड दूसरा, यहाँ पे ये जो शेयर्स हैं वो क्या होने चाहिए, फुली पैड अप होने चाहिए. फुली पैड अप मतलब इनकी जो फेस वैल्यू है वो मस्ट बी पेड फुली. एंड द लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिडीम करने के लिए यहाँ पे कंपनी के पास दो ऑप्शन है. दैट इज, या तो कंपनी के पास जो मुनाफा है उसमें से कंपनी रीपे करेगी, या तो कंपनी मार्केट में फ्रेश इक्विटी शेयर इश्यू करके उस कैपिटल में से इन शेयर्स को रीपे करेगी, दैट इज बाय बैक करेगी. Okay, our last topic of today's is irredeemable preference shares. Irredeemable means non-redeemable. Okay, it means not repayable preference shares. So what are these irredeemable preference shares? The shares which are not redeemable, that is payable only on winding up of the company, are called irredeemable preference shares. Means ये वो shares हैं जिनको कंपनी लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करेगी, इनको कंपनी कभी रीपे करेगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. ओके, बट यहाँ पे अगेन एक पॉइंट है, दैट इज सेक्शन 55 का सब सेक्शन 1. ओके, सेक्शन 55 का सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 का, कि अ कंपनी कैन नॉट इशू irredeemable preference shares. This is very important point of this heading. That is, यहाँ पे कंपनी irredeemable preference shares इशू नहीं करती है. मीन्स जो शेयर्स वाइंडिंग अप के टाइम पे रीपे हो ऐसे प्रकार के शेयर्स कंपनी इशू नहीं करती है. तो बेसिकली देखा जाए ना स्टूडेंट्स, अगर हम लोग 8 प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स को गो थ्रू अच्छी तरह करेंगे, सो वी विल गेट कि कंपनी को जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं. कौन से, या तो कंपनी इन शेयर्स को बायबैक करेगी, दैट इज रिडीम करेगी, या तो कंपनी इन शेयर्स को कन्वर्ट करेगी इक्विटी शेयर्स में. क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स ओपन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है, इसलिए जो इनकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनकी कैपिटल एप्रिसिएशन लो होती है. सो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनका जो डिविडेंड है उसी में से ही ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कमा लेते हैं. तो अब क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओपनली मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है. तो अगेन यहाँ पे कंपनी के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो कंपनी बाय बैक करेगी, या तो कंपनी उसको कन्वर्ट करेगी इक्विटी शेयर्स में. ओके, सो up to here today we have covered the 8 types of preference shares. I hope you all have understood today types of preference shares. Okay, and अब हमारा बाकी एक लास्ट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो ओन्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो कवर अप हो जाएगा.
Okay, so I hope you will all study this topic till I will cover the next lecture. Okay, so see you in my next lecture.